जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, फोर्स डिफेंस एकेडमी वेलकम्स यू ऑल। आज के लेक्चर में आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें लेकर के आया हूं। तमाम बच्चों को एक चिंता रहती है कि एसएसबी के इंटरव्यू के दौरान क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप आखिरी तक जरूर देखना। इसके अंदर 8 से 10 टिप्स आपको मिलेगी। इन टिप्स के अंदर आपको हर एक बारीकी से अवगत कराया गया है, किस तरह से एसएसबी इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू रूम में एंटर करना है, सीट कैसे लेना है और रूम इंटरव्यू होने के बाद रूम कैसे छोड़ना है। तो आप सारी बातों को ध्यान से सुने। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली आपका एक हद तक पूरा झिझक खत्म हो जाएगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। विदाउट डिलेइंग एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू। सो हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द इंटरव्यू? See, before going for the interview, you must make a mental note all the details given in your application. Be ready to answer questions concerning these. So ये कह रहा है आपसे कि whatever the information you have given in your PIQ form, these informations are very helpful and these informations are very important in the point of view for the SSB interview. So keep all the things in your mind. Second point पर आते हैं, have self confidence. Self confidence is very important point. Self confidence is the key to crack any interview. If you are going, do not try to get information regarding the type of questions asked by the interviewing officer from the previous candidates. What happened when someone is coming after the interview? We try to know some questions from the previous candidate. Don't try to do these things. This is likely to put you in useless suspense, make you nervous and lose self confidence. So if you have to make up your self confidence, then don't ask questions to others what is being asked there. Third is, don't be nervous at the time of entering the interviewing room. Face the interviewer with confidence. The interviewing officer will not be against you. He will be sympathetic. Give up your fear complex. Do your best and hope for the best. But be ready to face the worst also. Your appearance and dress. Next thing is your appearance and dress. What should be my appearance and what should be my dress? The dress of a person is a pointer to his personality. Your dress should be neat and clean, smart, fit and well pressed. It should not be gaudy and need not too expensive. You should look smart but not unusual. Sometimes स्मार्ट दिखने के कारण हम कुछ ऐसा कोशिश करते हैं जिससे हम अनयूजुअल नजर आते हैं। हमने लाइफ में कभी टाई बांधा हुआ नहीं है और उस दिन अगर टाई बांधते हैं, हो सकता है हमको ठीक से नॉट लगाना नहीं आता हो, या हो सकता है हमारा नॉट खुल जाए तो हम वापस ना लगा पाएं। तो वो ये कह रहा है कि आपका ड्रेस नीट एंड क्लीन हो, प्रॉपर प्रेस किया हुआ हो, बाकी अनयूजुअल चीजें करने की जरूरत आपको नहीं है। If you are interviewed in the morning hours while other GTO tests are going on, you will be required to go for interview in the pretty dress. अगर मॉर्निंग आवर्स में आपका काम चल रहा है, GTO अगर वहां पर कंटिन्यूएशन में है और अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो डेफिनेटली आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, आपको पीटी ड्रेस में इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। पर ध्यान रखिएगा, if you are summoned for interview from your room in the evening, you may wear a white shirt and black color trousers and necktie in summer and a suit in winter. अगर आपको इवनिंग में इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, जिस टाइम पर आप अपने रूम में रहेंगे, तो उस टाइम पर आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है। अगर व्हाइट शर्ट होगा, डार्क कलर का पेंट होगा, अगर आपने टाई कैरी किया है, या फिर विंटर का मौसम है अगर आपने सूट कैरी किया है, तो इट विल बी बेटर फॉर द इंटरव्यू। व्हेन यू एंटर द रूम, जब आप रूम में एंटर करेंगे तो क्या करेंगे? When you enter the room, before entering the interview room, tap on the door and enter when called in. कई बार ये होता है, हड़बड़ाहट में हम सीधे गेट खोल के अंदर घुस जाते हैं। आप what you have to do? You have to tap the door and enter when called in. जब बुलाया जाए come in, तब आपको enter होना है। If you find the door closed, shut it lightly after entering. अगर डोर पहले से बंद है तो वाकई अंदर घुसते समय डोर को वापस से शट करना पड़ेगा, तो शट उसको कीजिए पर लाइटली। आफ्टर एंटरिंग, इफ यू आर वियरिंग अ हैट, अब तो हैट ज्यादा पहनने का कोई चलन नहीं, पर फिर भी अगर सर पे टॉप हैट है, टेक इट ऑफ विद योर राइट हैंड, एंटर द रूम विद अ स्माइल एंड ग्रीट द इंटरव्यूइंग ऑफिसर विद अ पोलाइट बो सेइंग।
गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, और यू कैन से जय हिंद। थोड़ा सा पोलाइट वे में थोड़ा सा झुक करके अगर आप गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करेंगे, इट विल बी इंप्रेसिव फॉर द इंटरव्यूइंग ऑफिसर, क्योंकि इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी आप और हमारे जैसे इंसान ही हैं। आगे देखते हैं, इफ द इंटरव्यूइंग ऑफिसर गिव्स यू हिज हैंड, शेक इट वार्मली। अगर इंटरव्यूइंग ऑफिसर आगे होकर के आपको हाथ देते हैं तो आप हाथ मिलाइए, और अगर हाथ नहीं दिया है, इफ ही डजंट, यू एंड डू नॉट ट्राई टू ऑफर योर हैंड फर्स्ट। अगर उन्होंने हाथ नहीं दिया है तो आपको आगे से हाथ मिलाने की कोशिश नहीं करना है। कम टू द नेक्स्ट, टेकिंग ए सीट। अब आप रूम में एंटर हो गए हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर से आपने हाथ मिला लिया है या नहीं मिलाया है, जो भी सिचुएशन बनी है, अभी आपको धड़ से जाकर के चेयर पर बैठ नहीं जाना है। कैसे सीट लेना है वो भी आप समझ लीजिए। You will find a chair for you, but do not take a seat unless you are asked by the officer to do so. चेयर पर तब तक नहीं बैठना है जब तक आपके ऑफिसर ने आपसे कहा नहीं है। When asked, say thank you sir and then occupy the chair. If you have a hat, वो hat वाली बात हमारी हो गई है, ठीक है। Do not be stiff, बहुत ज्यादा कड़क बैठने की आवश्यकता नहीं है। बी नेचुरल एंड सिट कंफर्टेबली। आप अपने हैंड्स को अपने नीज पर रखिए, शांति से बैठिए, टेंशन अपने चेहरे पर झलकना नहीं चाहिए। तो अब आप रूम में एंटर हो गए हैं, आप ऑफिसर से मिल चुके हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग हो चुका है, आप सीट ले चुके हैं। उसके बाद क्या? ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इंटरव्यू के दौरान क्या करना है? इंटरव्यू के दौरान क्या करना है देखिएगा। हियर द क्वेश्चन केयरफुली, डू नॉट आंसर इन हैस्ट। क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिए, बहुत जल्दबाजी में आंसर मत दीजिए। When the questions have been put, pause a little to think out of the answer and then reply. थोड़ा सा आप शांति के साथ, शांति रखिए, क्वेश्चन जब पूछा जाता है 1 सेकंड आप लेकर के अपना आंसर प्रॉपरली दीजिए। If you do not understand a question or are in doubt about it, have it clarified by the interviewing officer by saying I beg your pardon sir. अगर कोई क्वेश्चन आप ठीक से नहीं सुन पाए हैं, अगर आप क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप उनसे वापस से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वापस से क्वेश्चन पूछने के लिए कोई आपको सजा नहीं दी जाएगी। योर स्पीच, अब आपका स्पीच कैसा होना चाहिए? योर स्पीच शुड बी नेचुरल एंड नॉट अफेक्टेड। आपका स्पीच नेचुरल होना चाहिए, उसके अंदर बहुत ज्यादा अलग से कोई प्रेशर उसमें झलकना नहीं चाहिए, उस वॉइस के अंदर अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं होना चाहिए। डू नॉट स्पीक टू लाउड बट यू मस्ट बी ऑडिबल। बहुत लाउड नहीं बोलना है, पर आपकी आवाज ऑडिबल होना चाहिए, सुनाई देना चाहिए। स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, क्लियरली बोलिए और कॉन्फिडेंटली बोलिए। स्पीक एवरी वर्ड डिस्टिंक्टली एंड प्रोनाउंस इट क्लियरली एंड करेक्टली। हर वर्ड थोड़ा सा अलग बोलिए, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा सही करने की कोशिश कीजिए। हालांकि प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत नहीं है, मेरे जैसे हिंदी मीडियम के प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा आपको अंग्रेज बनने की आवश्यकता नहीं है। नाइदर स्पीक टू फास्ट नॉर टू स्लो, बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं बोलना है, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं बोलना है। योर एटिकेट्स, आपके एटिकेट्स कैसे होना चाहिए? गिव ड्यू रेस्पेक्ट टू द इंटरव्यूइंग ऑफिसर बाय एड्रेसिंग हिम एज अ सर एंड प्लीज। जब हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर को आप समझ रहे हैं रेस्पेक्ट तो देना ही है, तो आप जहां यूज कर सकते हैं वहां सर और प्लीज वर्ड का यूज कीजिए। बी पोलाइट एंड पॉलिश्ड इन योर लैंग्वेज बट डू नॉट फ्लेटर द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। आपको इंटरव्यू के दौरान पोलाइट रहना है, आपको इंटरव्यू के दौरान अपनी लैंग्वेज को पॉलिश्ड रखना है, पर कहीं भी आप फ्लेटरी ना करें, कहीं भी आप चापलूसी करने की कोशिश ना करें। योर आंसर्स, आपके आंसर्स कैसे होना चाहिए? योर आंसर्स शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। आपके आंसर्स ब्रीफ होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। डू नॉट टॉक टू मच, ऑलवेज रेस्ट्रिक्ट योर टॉक विद इन द लिमिट्स ऑफ योर सब्जेक्ट एंड डू नॉट गो एस्ट्रे। इफ यू टॉक यूजलेसली यू आर लाइकली टू शो मेनी ऑफ योर शॉर्टकमिंग्स। जितना पूछा गया है उतने जवाब देना है, जबरदस्ती अननेसेसरी आपको लॉन्ग आंसर्स देने की कोशिश नहीं करना है। अगर आप अपनी तरफ से, आपको ये केयरफुली ध्यान रखना है कि व्हाट एवर हैज बीन आस्क्ड यू हैव कवर्ड इट इन योर आंसर। अगर उससे ज्यादा एक्स्ट्रा आप बोलने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपकी शॉर्ट कमिंग्स बाहर आ जाए। आगे क्या कह रहा है? नेवर ऑफर इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक अनलेस यू आर आस्क्ड अबाउट इट। किसी भी टॉपिक पर
अलग से इंफॉर्मेशन नहीं देना है अगर पूछा नहीं गया है। अवॉइड मैनरिज्म ऑफ फीडिंग विद एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी और एनीथिंग एल्स, थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों। अगला है बच्चों डू नॉट ब्लफ, ब्लफबाजी वहां ना करें। डू नॉट ट्राई टू ब्लफ द इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ही इज एक्सपेक्टेड टू नो much more about the subject under discussion when you do than you do. Therefore, you should be truthful, frank and sincere. आपका sincere होना वहां पर जरूरी है, आपका truthful होना वहां पर जरूरी है। When you do not know the answer to a question, frankly admit that. अगर किसी सवाल का आंसर नहीं आता है तो आप उसको एडमिट कर लीजिए, सॉरी सर। If you make a false statement, you lose your chance of selection. झूठ बोलेंगे सिलेक्शन के चांसेस खत्म हो जाएंगे। Do not be nervous or angry. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। Do not be nervous or angry. If the interviewing officer asks you any question which you consider foolish, do not get upset. Give your answer courteously. अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ये उस लेवल का नहीं है जो पूछा जाना चाहिए, तो आपको अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसको कोर्टियसली, आप उसको प्यार मोहब्बत से पोलाइटली उस क्वेश्चन का भी आंसर कीजिए। इफ ही ट्राइज टू एंगर और प्रोवोक यू, अगर वो आपको भड़काने की कोशिश करे, डू नॉट लूज योर टेम्पर और गेट एक्साइटेड बिकॉज ही इज ओनली टेस्टिंग योर नर्व एंड योर कैपेसिटी फॉर पेशेंस। यू मस्ट रिमेन कूल हेडेड। भड़काने की कोशिश भी करेंगे, कुछ ऐसे सवाल भी पूछे जाएंगे जिससे आप थोड़ा सा गुस्सा हो जाओ, पर वो ये सब इसलिए कर रहे हैं वो देख पाएं कि बंदा शॉर्ट टेम्पर्ड तो नहीं है, बंदा बहुत तेजी से गुस्सा तो नहीं हो जाता। बी ह्यूमरस, आपकी बातें सुनने में उनको थोड़ा सा आनंद आना चाहिए, आपकी बातें सुनकर उनको लगना चाहिए कि बंदा स्टूडियस है। डू नॉट वियर ए ग्लूमी लुक ऑन योर फेस, थोड़ा सा चेहरा खुशी हो, ऑलवेज स्माइल, बी हैप्पी। While you are being interviewed, always have a smiling face. जब भी इंटरव्यू हो रहा है चेहरे पे थोड़ी सी खुशी होना चाहिए, लगना चाहिए कि ये जिस काम के लिए आया उस काम से खुश है, ये धकेला हुआ किसी का जबरदस्ती भेजा हुआ बंदा नहीं है। While leaving the room, when you are giving an indication, रूम कब छोड़ना है? जब आपको इंडिकेशन कर दिया जाए कि ओके डियर इट इज ओवर, आपको क्या करना है? That the interview is over, give up and give a slight courteous bow and say goodbye sir, थोड़ा सा झुक जाइए, goodbye sir, thank you, and leave the room keeping the chair in the place where you found it. चेयर को थोड़ा सा, जब हम उठते हैं पीछे आते हैं तो चेयर थोड़ी सी आगे पीछे हो ही जाती है, आप चेयर को अपने प्रॉपर प्लेस पर वापस कर दीजिए और सर को थैंक यू गुड बाय करके वापस बाहर आ जाइए। When you are coming out of the room, there should be confidence on your, it should be seen on your face, और कॉन्फिडेंस के साथ आइए, थोड़ा सा कंधे वंधे झुकाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने पूरा इंटरव्यू ध्यान से पढ़ा, सुना, देखा। आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल टू यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।